Nandana Braja Janaranjana Yashodanan Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Jaya Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Jai Om Vishnupada Paramahamsa Parivajakacarya Stotra Shashi Srimad Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai ISKCON Guru Vrind Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Grantara Srimad Bhagavatam Ki Jai Nitai Gopremanande Hari Hari Hare Krishna Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakya Chakshuruna Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna. So we are going to continue reading from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 3, Pure Devotional Service, The Change in the Heart.
और टेक्स्ट नंबर 23। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जीवन च वो भागवताङ्घ्रिरेणुम् जीवन च वो भागवताङ्घ्रिरेणुम् न जातुमर्त्योऽभिलभेत यस्तु न जातुमर्त्योऽभिलभेत यस्तु श्रीविष्णुपाद्यामनुजस्तुलस्यः श्रीविष्णुपाद्यामनुजस्तुलस्यः स्वसंसवो यस्तु न वेदगन्धम् स्वसंसवो यस्तु न वेदगन्धम् जीवन च वो भागवताङ्घ्रिरेणुम् न जातुमर्त्योऽभिलभेत यस्तु श्रीविष्णुपाद्यामनुजस्तुलस्यः स्वसंसवो यस्तु न वेदगन्धम् जीवन च वो भागवताङ्घ्रिरेणुम् न जातुमर्त्योऽभिलभेत यस्तु श्रीविष्णुपाद्यामनुजस्तुलस्यः स्वसंसवो यस्तु न वेदगन्धम् जीवन च वो भगवताङ्घ्रिरेणुम् न जातुमर्त्योऽभिलभेत यस्तु श्रीविष्णुपाद्यामनुजस्तुलस्यः स्वसंसवो यस्तु न वेदगन्धम् जीवन च वो भगवताङ्घ्रिरेणुम् न जातुमर्त्योऽभिलभेत यस्तु श्रीविष्णुपाद्यामनुजस्तुलस्यः स्वसंसवो यस्तु न वेदगन्धम् जीवन च वो भगवताङ्घ्रिरेणुम् न जातुमर्त्योऽभिलभेत यस्तु श्रीविष्णुपाद्यामनुजस्तुलस्यः स्वसंसवो यस्तु न वेदगन्धम् जीवन while living savaha a dead body bhagavata angrirenum
the dust of the feet of a pure devotee. Na, never, jatu, at any time, martya, mortal, abhilabheta, particularly received, ya, a person, tu, but, Shri, with opulence, Vishnupadya, of the lotus feet of Vishnu, Manujaha, a descendant of Manu, a man, Tulasayaha, leaves of the Tulasi tree, Swasan, while breathing, Savaha, still a dead body, Ya, who, to, but, Naveda, never experienced, Gandham, the aroma. Translation and purport by Srila Prabhupada ki. The person who has not at any time received the dust of the feet of the Lord's pure devotee upon his head is certainly a dead body. And the person who has never experienced the aroma of tulasi leaves from the lotus feet of the Lord is also a dead body, although breathing. बहुत सुंदर यहाँ पे few verses में से ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से हम लोग प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस में एंगेज हो सकते हैं, कैसे एक मनुष्य को। यहाँ पे बताया गया है, शब्द दिया है मनुजस, जो मैन है, जो डिसेंडेंट ऑफ मनु है, मनुष्य योनि का। तो आज के श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति पवित्र भक्तों के कमल चरण के रज को अपने सिर पर धारण नहीं किया है, वो एक मृतक शरीर जैसा है, डेड बॉडी है। और जो व्यक्ति कभी भी तुलसी का जो महक है वो ग्रहण नहीं किया है, भले वो श्वास ले रहा है, वो भी मरा हुआ व्यक्ति है। तो पपर्ट में प्रभुपाद जी समझाते हैं, अकॉर्डिंग टू श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, द ब्रीदिंग डेड बॉडी इज अ घोस्ट। When a man dies, he is called dead. But when he again appears in a subtle form not visible to our present vision and yet acts, such a dead body is called a ghost. Ghosts are always very bad elements, always creating a fearful situation for others. Similarly, the ghosts, like non-devotees who have no respect for the pure devotees, nor for the Vishnu deity in the temples, create a fearful situation for the devotees at all times. The Lord never accepts any offering by such impure ghosts. तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत स्पर्श बताते हैं कि जब हम लोग डिवोटीज नहीं होते हैं, एक्चुअली भगवान ऑफरिंग्स नहीं एक्सेप्ट करते हैं। स्ट्रेट बात है ना, मीन्स पीपल लोग अलग अलग वस्तु करते हैं विच अपीयर्स, जैसे लगता है कि ये कर रहे हैं, लेकिन जो प्योर पर्पस नहीं रहता है। प्योर पर्पस है कृष्ण वांट्स अस टू बिकम डिवोटीज, सो यू हैव टू बिकम डिवोटी सो दैट कृष्ण एक्सेप्ट्स। तो बताया गया है, there is a common saying that one should first love the dog of the beloved before one shows any loving sentiments for the beloved. The stage of pure devotion is attained by sincerely serving a pure devotee of the Lord. The first condition of devotional service to the Lord is therefore to be servant of a pure devotee, and this condition is fulfilled by the statement, reception of the dust of the lotus feet of a pure devotee who has also served another pure devotee. That is the way of pure disciplic succession or devotional parampara. हम लोग देखेंगे, विशेष करके अभी कलयुग के समय में देखा जा रहा है कि ये कल्चा ही समाप्त हो गया है। दी अदर डे हम लोग बात कर रहे थे, जयराम प्रभु में चर्चा कर रहे थे कि
हम लोग स्मरण करते हैं ना कि जब तमाल कृष्ण महाराज थे उस समय 1980s के बात है, 90s के बात है, जब हम लोग सब डिवोटीज बने, उस समय एक बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन होता था जिसमें श्रील गुरुदेव जो स्पिरिचुअल मास्टर है, जो कल के श्लोक में बताया कि स्पिरिचुअल मास्टर जो है, प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखे थे, वन शुड नॉट बिकम अ सूडो स्पिरिचुअल मास्टर। तो गुरु सूडो स्पिरिचुअल मास्टर नहीं था कि वो क्या मतलब, यू हैव डिसाइपल्स टू टेक केयर ऑफ यू। गुरु अपने आप के से, गुरु तो जानता है कृष्णा टेक्स केयर ऑफ मी ना, 6 points ऑफ सरेंडर में कृष्णा टेक्स केयर ऑफ यू। तो गुरु जानता है कि आई एम हियर टू अवेकन द डोमेंट लव ऑफ कृष्ण, और डिसाइपल जानता है कि आई एम हियर टू सर्व द स्पिरिचुअल मास्टर। आई थिंक सो मेनी टाइम्स लोग देखेंगे अभी के जमाने में क्या हो गया है, गुरुदेव ये भी बोलते थे कि अभी के जमाने में क्या होता है कि हम लोग, हमारा आइडिया होता है और हम लोग चाहते हैं गुरु उसको ब्लेस कर दे। ब्रह्मचारी को गुरु के पास नहीं जाना है कि गुरुदेव मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ, तो गुरुदेव बोलेंगे ठीक है चलो आपको आशीर्वाद है। वैदिक सिस्टम है, ब्रह्मचारी को गुरु के पास में जाना चाहिए और गुरु से पूछना चाहिए कि गुरुदेव आप बताइए मुझे ब्रह्मचारी रहना मेरे भक्ति के लिए उचित होगा कि गृहस्थ होना। तो कभी कभी हम लोग अभी के समय में ऐसा होता है, वी डिटर्मिन कि मुझे क्या करना है। नहीं, गुरु शिष्य का रिलेशनशिप ऐसा होता है, शिष्य शरणागत होता है, गुरु शिष्य को देख के बताते क्या सेवा करना है। अभी तो हम लोग, मैं सोच रहा था कि आजकल क्या हो गया है कि हम लोग ये बहुत ज़्यादा वेस्टर्न सिविलाइजेशन से हम लोग के मेंटालिटी जो है वो कंटेमिनेट हो गया है। हम लोग सोचते हैं ये इक्वल राइट्स का ज़माना है, और जैसे संसार में इक्वल राइट्स होता है तो हम लोग सोचते हैं जैसे डिवोशनल सर्विस में इक्वल राइट्स, अधिकार सबका है, लेकिन अलग अलग अधिकार का अलग अलग योग्यता है। हम लोग सोचते हैं अमुक व्यक्ति प्रचार कर रहा है तो मुझे भी प्रचार करना चाहिए, अमुक व्यक्ति डीटी वर्शिप कर रहा है तो मुझे भी करना है। सबका अलग अलग गुण है। गुरु देखते हैं, जैसे हम लोग इनिशिएशन लेते हैं, गुरु देखते हैं तब फर्स्ट इनिशिएशन देते हैं। गुरु देखते हैं कि हाँ इसमें योग्यता है ये करने का, स्क्रिप्चर स्टडी करने का, तब उसको सेकेंड इनिशिएशन देते हैं। इस प्रकार से होता है। तो ये जो यहाँ पे बताया गया है, द वे ऑफ प्योर डिसिप्लिक सक्सेशन और डिवोशनल परंपरा जो है वो है कि हम लोग डिवोटीज के फॉलो करें। डिवोटीज, तभी से हम लोग के लाइफ में गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु होते हैं, वैष्णवज होते हैं। द होल प्रोसेस इज सरेंडरिंग। जब हम लोग सरेंडर नहीं होंगे देन देयर इज नो प्रोग्रेस। प्रभुपाद जी का कॉम्बिनेशन देखिए, प्रभुपाद जी को एकदम आत्मसमर्पण, जो चैतन्य चरितामृत में बताया दीक्षा काल शिष्य करे आत्मसमर्पण। एक्चुअली व्हेन यू टेक शेल्टर, खाली इनिशिएशन नहीं, मतलब एज सून एज यू वांट टू प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, यू सरेंडर टू अ साधु, यू सरेंडर, इट हैज टू बी अ सरेंडरिंग प्रोसेस। इसका मतलब नहीं कि हम लोग अपन इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं अलाउड है, लेकिन आइडिया इज इंडिपेंडेंट थिंकिंग जो है उसको गुरु साधु शास्त्र से वेरीफाई करना पड़ता है ना, जो आपको हरदम बताते हैं कि क्या हम लोग कहते हैं, जो उसको वैलिडेट करना होता है। तो यू मे हैव सम बिकॉज हम इंडिविजुअल है, हम लोग सब लोग इंडिपेंडेंट है, भगवान स्वतंत्रता दिया है, तो इसे नहीं कि हम लोग के अलग सोचे के अनुमति नहीं है। संसार के लोग अलग सोचे और अपन मन के करें। डिवोशनल प्रोसेस अगर अपन मन के सोचा भी है तो उसके गुरु साधु शास्त्र से वेरीफाई करो, वैलिडेट करो कि मैं जो सोच रहा हूँ मुझे ये सेवा करना है। हाँ? जैसे कभी कभी डिवोटीज लोग, अभी बहुत कॉमन हो गया है, डिवोटीज लोग बिना किसी अनुमति के, बिना कोई सीनियर वैष्णव को कंसल्ट करे तो लोग डिसाइड करते हैं मैं लड्डू गोपाल का सेवा करूँगा, मैं घर पे डीटी रख लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। अगर आपको इच्छा है तो इच्छा गुरु साधु को प्रकट करो, तो फिर गुरु साधु आपको देखेगा चलो आपका प्रैक्टिस ठीक है, आप डिसिप्लिन हो। तो अगर आप डीटीज रखोगे तो डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा ना, घर पर भी डीटीज होगा तो डिसिप्लिन होगा, भोग लगाना होगा, जप करना होगा,
अभी गुरु जानेंगे, डिवोटी जानेगा, जो डिवोटी आपको प्रीच कर रहा है वो जानता है आप मंदिर तो आते हो लेकिन आप चैंट नहीं करते हो, तो फिर खाली डीटीज का सेवा करने से कैसे भक्ति प्रोग्रेस हो ना। जैसे अम्बेडकर कृष्ण महाराज कहते हैं कि बताएगा, बोला कलयुग के लिए क्या है, वी वर्शिप गौनिताई, और गौनिताई को कैसे वर्शिप करना है, बाय ऑफरिंग एंड बाय सिंगिंग कीर्तन्स टू देम। मतलब वी हैव टू चैंट, यू चैंट जपा एंड यू मेक ऑफरिंग। तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें सुखदेव गोस्वामी प्रभुपाद जी बहुत हेवी पर्पट्स लिखा है इसमें। कल का श्लोक में प्रभुपाद जी बहुत अच्छा से आई थिंक अगर हम लोग ये 3, 4, 5 श्लोक जो भी हम लोग यहाँ से पढ़ते आ रहे हैं, अगर उसके पर्पट हम लोग खाली लाइफ में उतार ले, उतना 4-5 पेपर उतार लो, लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगा। कंप्लीट नॉलेज प्रभुपाद जी इसमें दे दिया कि हम लोग के भक्ति जीवन कैसा होना चाहिए। Maharaj Rahugan inquired from the great saint Jada Bharat as to how he had attained such a liberated state of a Paramhamsa. In the answer, the great saint replied as follows, Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 12, Verse 12. तो बोला कि महाराज रहुगन को ने पूछा था जड़ भरत से कि कैसे ये लिबरेट स्टेट आप अटेन किया है। तो उसका जवाब में बोला, रहुगणा नैत तपसा न याति न चेज्यया निर्वापणात् घृणात् वा न छन्दसा नैव जलांगी श्रुये विना महत्पादरजोभिषेकम्। O King Rahugan, the perfectional stage of devotional service or the Paramhamsa stage of life cannot be attained unless one is blessed by the dust of the feet of great devotees. क्या प्रभुपाद जी लिखा? ग्रेट डिवोटीज। प्रभुपाद जी हम लोग संस्था बनाया है, ये संस्था में सब डिवोटीज है, साधुस। हम लोग सुबह सुबह प्रार्थना कहते हैं तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, वंदे गुरु श्री चरणारविंद। गुरु वंदे, गुरु मीन्स वन, गुरु मीन्स मेनी डिवोटीज। हम लोग के लाइफ में सब थे, प्रभुपाद डिसाइपल्स लोग ने डिवोटीज है, सीनियर डिवोटीज जो प्रीच करे वो डिवोटीज है, सो मेनी। हम लोग कभी कभी टेम्पल आता है, कोई नया भक्त है, if you sort of inspire someone, then at one stage you become guru for a new person, giving guide। गुरु मतलब जो स्पिरिचुअल गाइड देता है। तो यहाँ पे प्रभु जी बोले कि जिसके सर पर भक्तों के, रहुगन महाराज कहते हैं, रहुगन को बताया गया है, जड़ भरत कहते हैं, it cannot be attained unless one is blessed by the dust of the feet of great devotees। The great devotees के तो अभी रहुगन महाराज जड़ भरत का एग्जाम्पल रहे हैं। जड़ भरत बाहर से देखने से बिल्कुल नहीं लगते थे। He looked like a madman. He looked like a madman. लेकिन जब when he spoke, और हम देखते हैं हम के डिवोटी सब जो 2 दिन का भी भक्त आता है हमारे मंदिर में जुड़ता है, वो कृष्ण को समझ गया है, एंड they can tell their conviction to someone else। शायद व्यासासन से नहीं कर पाएंगे लेकिन 1-on-1 कर लेते हैं। तो everyone is a devotee, everyone is a devotee। मैं सोच रहा हूँ कभी कभी हम लोग ऐसे मिसकंसेप्शन में पड़ जाते हैं कि केवल अमुक व्यक्ति डिवोटी है, अमुक व्यक्ति नहीं है, अमुक व्यक्ति मोर एडवांस डिवोटी है। लेकिन कृष्णा के सब डिवोटीज, कितना ढेर डिवोटीज है कृष्ण के। एवरीवन इज नॉट राधा रानी, everyone is not gopis, everyone is not Yashoda, everyone is not Krishna's Sakha, but they are devotees. The demigods are also Krishna's devotees. They may have some material desires, they may have some desire to be in position, but they are all devotees. They are still devotees. तो जो प्योर डिवोटीज, जो ग्रेट डिवोटीज है, उनका तो डायरेक्ट, हमें तो प्रभुपाद जी का डायरेक्ट हम लोग का कनेक्शन हो गया। तो जितना प्योर डिवोटीज, मतलब एवरीवन इज डिवोटीज, बट द मोर प्योर द डिवोटी इज, द मोर पावरफुल और फास्टर तीव्रेना द इफेक्ट। तो प्रभुपाद वाज प्योर डिवोटी, प्रभुपाद जस्ट टच्ड एवरीवन एंड एवरीवन's consciousness changed। बट वी all
ऐसे तो बताया गया. यू कैन सी अनदर एग्जाम्पल इज, ऐसे हम लोग देख सकते हैं, प्रभुपाद अपने हाथों से बनाते थे, अपने ऑफरिंग करते थे, अपने बांटते थे. The first generation of devotees were so lucky. They hear from a pure devotee, they eat prasadam made by the hands of a pure devotee, and even when distributing prasadam, they were receiving it from the hands of pure devotee. It was simply khali power pass hota. And then you realize कि कैसे इतना भारी प्रभुपाद के डिसाइपल इतना immense, powerful effect करके प्रचार कर दिए, because they were in direct touch of pure devotees. जब मैं ये एग्जाम्पल देखता हूँ तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि हम लोग के स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने के वास्ते हमें सेवा में लगना है. ठीक है, तो हम लोग जब सेवा में लगते हैं तो जब हम लोग सेवा करते हैं तो कोई एक रिसीविंग एंड में होता है. तो प्रभुपाद के डिवोटी डिसाइपल्स वर रिसीविंग एंड एंड प्रभुपाद वाज एक्चुअली सर्विंग देम. बिकॉज प्रभुपाद वाज प्योर डिवोटी, वो प्रभुपाद के हाथ के प्रसाद भी खाए तो सेम टाइम डिवोटी हो जाए. तो मैं सोचता हूँ कि हम लोगों को क्या सोचना चाहिए कि प्रभुपाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग के ऊपर पास कर दिया. अब हम लोग बना के खिलाते हैं, अब हम लोग अलग अलग करते हैं जिसमें कि पीपल कनेक्ट हुए. तो मैं सोचता हूँ कि हम लोग के क्या सोचना चाहिए कि वी मस्ट कीप आवरसेल्फ टू द स्टैंडर्ड ऑफ श्रील प्रभुपाद, प्यूरिटी ऑफ श्रील प्रभुपाद, बिकॉज तभी तो वो मर्सी एज इट इज फ्लो होगा. हम लोग ऐसे नहीं सोचो, कोई नया डिवोटी आया है, नया लोग आते हैं तो ऐसे सोचे ओ ठीक है, जयराम प्रभु इज अ बेटर डिवोटी, जीवनाथ प्रभु इज अ बेटर डिवोटी, और राधिका प्रेम माता जी इज अ बेटर डिवोटी, तो इनको करना चाहिए जिसमें कि हम लोग के मर्सी मिले. अरे भाई, ये लोग अपने आप को पवित्र रख रहे हैं क्योंकि ये मर्सी पास करना चाहते हैं, तो ऐसे हम लोग को भी अपने आप को पवित्र रखना होगा सो दैट द मर्सी कैन फ्लो. आई थिंक एवरी डिवोटी शुड, द मूड इज वी आर फॉलन, वी आर कंडीशन. नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं चैतन्य महाप्रभु को कि भगवान आप पतित को उद्धार करने आए हो, मौसम पतित प्रभु ना पाई व्यार, मेरे से गिरा कोई नहीं मिलेगा आपको. Therefore, my right to your mercy, compassion is first. मुझे पहले कृपा दो भगवान, क्योंकि मैं सबसे गिरा. लेकिन उसका मतलब नहीं था कि नरोत्तम दास ठाकुर चेक नहीं करते थे, नरोत्तम दास ठाकुर सेवा नहीं करते थे. नरोत्तम दास ठाकुर कितना डीप भजन, कितना लर्नड है, कितने पवित्र भक्त हैं. नरोत्तम दास ठाकुर was that devotee whom Lord Chaitanya gave his love to Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu gave his love to Padma Riva. That when Narottam Das Thakur come, Padma Riva said, how would I know that this is Naru, this is Narottam? Well, as soon as his feet will touch your waters, you will experience ecstasy. He was such an advanced devotee. But yet look at his mood of prarthana. He's saying, Lord Chaitanya, I am the most fallen, therefore please give your mercy to me. So every devotee in the ISKCON movement should know that you are direct representative of Srila Prabhupada, and therefore highest standard of spiritual life should be practiced by you. ये किसी के बताने का काम नहीं है, हम लोग के मांगो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो. कैसे हम लोग समझेगा? व्हेन यू हियर रीड प्रभुपाद पोपट, प्रभुपाद हम लोग के डायरेक्ट एम्पावरमेंट करें. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोले हैं कि रघुगण के एग्जाम्पल दे, महाराज रघुगण के एग्जाम्पल दे कि भरत महाराज के जब जड़ भरत के जब पूछी तो जड़ भरत जवाब दे कि यू कैन नॉट, द परफेक्शनल स्टेज ऑफ डिवोशनल सर्विस और परमहंस स्टेज ऑफ लाइफ कैन नॉट बी अटेन्ड unless one is blessed by the dust of the feet of great devotees. It is never attained by tapasya, austerity, Vedic worshipping process, acceptance of renounced order of life, the discharge of duties of household life, the chanting of Vedic hymns, or performance of penances in the hot sun, within cold water, or before the blazing fire. ये ट्रांसलेशन में पढ़ा तो मुझे हमारे गुरुदेव का टाइम, जीवनाथ प्रभु, भगवती माता जी, आप लोग याद करेंगे, when we became devotees, पूरा लटोका हम लोग जाते थे, लंबासा में वृंदावन चंद्र प्रभु थे. The whole atmosphere was surcharged with service to devotees.
हर एक भक्त एक दूसरे भक्त का सेवा करना चाहता था। हर एक भक्त यही सोचता था कि हाउ कैन आई हेल्प अनदर डिवोटी। हम लोग शुरू किए थे जीवनाथ प्रभु, हम लोग बहुत मिनियल सर्विस है। हम लोग सोचते थे कि हम प्लेट भी पोंछ के रख दे तो एक दूसरे भक्त को सेवा हो गया। बिकॉज की उस समय गुरु कृपा प्रभु और दक्षिणा माता जी ये लोग टेम्पल प्रेसिडेंट लीडर्स थे टेम्पल के। तो हम लोग का भाव था हाउ टू हेल्प देम, सो दैट हम लोग के इंटरेस्ट उतने रहा कि इफ वी हेल्प नंद किशोर प्रभु, इफ वी हेल्प जगन्नाथ प्रभु, वी हेल्प रामचंद्र प्रभु, वी हेल्प वृंदावन चंद्र प्रभु, वी हेल्प वासुदेव प्रभु, वी हेल्प भगवती माता जी। यही हम लोग के सर्विस रहा और कुछ नहीं रहा। वी गेट कृष्ण's कृपा बाय सेविंग द डिवोटीज। एकदम परफेक्ट ट्रांसलेशन प्रभु भागवतम के वर्ड है, खाली मतलब इट्स नॉट अ समथिंग आई एम मेकिंग अ कमेंट ऑन माय ओन। ये भागवतम का वर्स का ट्रांसलेशन है। भागवतम का शब्द इतना इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ भी हम लोग करेंगे उससे हम लोग परफेक्शनल स्टेज नहीं प्राप्त करेंगे। तब से पंचरात्रिक विधि में बताया गया कि एक पुजारी हो अगर डीटी वर्शिप भी कर रहा है, बोला अगर एक प्योर डिवोटी आ जाए, you should actually put down the आरती and offer respects to a pure devotee। इतना कृष्ण अपन आप के भूल जाते हैं प्योर डिवोटी के सामने। कृष्ण becomes आधीन। आई एम नॉट सेइंग वी क्रिएट ऑफेंस टू द डीटीज। कहने का मतलब है कि इतना इंपॉर्टेंट है डिवोटी कि ग्रंथ इतना तक बोलता है कि भगवान का पूजा स्टॉप करके, कल के वर्स में प्रभुपाद जी शब्द यूज किया था जो आप पढ़े थे, द ट्रेनिंग ऑफ डिवोशनल सर्विस फॉर अ नियोफाइड डिवोटी कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द एक्सपर्ट स्पिरिचुअल मास्टर who knows how to lead his disciple to make gradual progress towards the path back home, back to God। नियोफाइड डिवोटी क्या करता है? अपने आप से सोचता है what should I do। नियोफाइड डिवोटी को गुरु पे गुरु जानता है कैसे उसके ग्रेजुअली प्रोग्रेस कराना है। गुरु जानता है उसको कैसे प्रोग्रेस कराना है। हम लोग प्री मैच्योरली भी नहीं, कभी कभी डिवोटीज भी क्या करते हैं प्री मैच्योरली। देखो डिवोटी क्या होता है? अमानी ना मान देना। वो खुद मान नहीं चाहता है, दूसरे को मान दे सकता है, ठीक है। लेकिन आजकल के जमाने में धर्म संस्थाओं में भी मैंने देखा है, मैं देखता हूं, ऑब्जर्व करता हूं, एंड आई थिंक दिस इज अनदर वे ऑफ स्पॉइलिंग द प्योरिटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। व्हेन वी स्टार्ट गिविंग फेक प्रेजेस टू people, fake glorification to people for what they have not done। कोई थोड़ा से कृष्ण में शरणागत है, थोड़ा से भक्ति में लग रहा है, कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं, गुरु एक्सपर्ट गुरु जो होता है वो जानता है कैसे इसके लीड करो इनटू भक्ति। नहीं तो कभी कभी हम लोग हद से ज्यादा किसी को बड़ाई करने लगेंगे, ये करने लगेंगे, क्या होता है? नंबर वन, हम लोग सब कंडीशन है तो एक दूसरा डिवोटी अपसेट हो जाता है। दूसरा मेन प्रॉब्लम है कि कभी कभी केवल झूठ के प्रशंसा देने से, कलयुग में ऐसा है जो व्यक्ति कुछ करता भी नहीं उसको प्रशंसा मिलता है, वो सोचने लगता है कि मैं कर रहा हूं इतना भ्रमित हो जाता है। भगवान के सेवा मतलब मीनियल सर्विस, वहां से शुरू होता है, वहां से शुरू होता है। जो मीनियल सर्विस नहीं किया है वहां से नहीं शुरू होता है। हम लोग सब पे देखेंगे, भगवती माता जी को देखेंगे, जीवनाथ प्रभु, जयराम प्रभु, हम लोग शायद सोचेंगे कि ये लोग सब लीडर्स हैं, सब लोग ऐसे बस आते हैं, सब लोग दंडवत करते हैं, सब लोग ये लोग बैठते हैं, सब लोग सेवा करते हैं। वैष्णव हिस्ट्रीज भी जानना चाहिए है? मैं सोच रहा हूँ, मैं एक उस दिन सोच रहा था गुरुदेव के व्यास पूजा पे भगवती माता जी बोल रही थी, मुख चर्चा कर रहे थे। श्रील गुरुदेव फीजी आते थे, श्रील गुरुदेव वासुदेव प्रभु भगवती माता जी को बोला, ये लोग प्रभुपाद निवास में रह रहे थे, वेरी ऑपुलेंट सब कुछ था। गुरु भाई बोला कि यहाँ से निकल के अब दूसरे शहर में जाओ और कृष्ण भावना की वहां स्थापना करो। वो गुरु भाई का बात ऐसे सुन लिया जैसे गुरु बोल रहा है, प्रभुपाद बोल रहा है। यू कैन जस्ट इमेजिन what is the respect, what is the relationship between God brothers and God sisters
कि गुरु भाई भी हमारे जीवन में, इसीलिए उसको गुरु भाई कहते हैं, वो गुरु का रिप्रेजेंटेटिव है हमारे लाइफ में। मुझे तुम्हारा कृष्ण महाराज एक बार, श्रील गुरुदेव एक बार एक लेटर लिखे थे मुझे स्वाहा माता जी मेरे साथ शेयर किया उसको। तो बोला श्रील गुरुदेव बोला, मेरा सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, इज टू श्रील प्रभुपाद। ठीक, अपने गुरु के प्रति सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाया जाता है, अपने गुरु के प्रति अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाया जाता है, इज टेक केयर ऑफ योर स्पिरिचुअल लाइफ। तो गुरुदेव प्रायोरिटी लिस्ट में मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है माय रिलेशनशिप विद प्रभुपाद। रिलेशनशिप विद प्रभुपाद मतलब गुरु के साथ में संबंध, मतलब हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफ है, जो 16 राउंड चेंज करना है, जो गुरु के हमारा संबंध है, जो हमारा साधना है, वो नंबर 1 प्रायोरिटी है। क्योंकि जब साधना अपना मेंटेन करोगे, देन यू आर कनेक्टेड टू द गुरु। साधना नहीं करोगे, यू आर डिस्कनेक्टेड टू द गुरु। जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, हम लोग सेल एंड परचेज एग्रीमेंट साइन करा, लेकिन अगर उसमें क्लोज रहे, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एनी क्लोज voids द कॉन्ट्रैक्ट। तो श्रील गुरुदेव बोला कि पहले अपन गुरु के रिलेशनशिप के टेक केयर करो। गुरु के रिलेशनशिप कैसे टेक किया हुआ है? बाय टेकिंग केयर ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, टेकिंग केयर ऑफ योर साधना। सेकंड बोला मेरे गुरु भाइयों का रिलेशनशिप, क्योंकि गुरु के अनुपस्थिति में गुरु के भाव को कैसे समझोगे? थ्रू द एसोसिएशन ऑफ गॉड ब्रदर्स एंड गॉड सिस्टर्स। तो भगवती माता जी, वसुदेव प्रभु एक एग्जाम्पल है। प्रभुपाद जी डिसअपियर हो गए तो गुरुदेव थे और गॉड ब्रदर गॉड सिस्टर थे। तो गुरुदेव बोले ये सुख संपत्ति छोड़ो और जाओ सुबह सिटी में जाके करना। मैं कभी कभी सोचता हूँ, वसुदेव प्रभु पुंजस के डायरेक्टर थे, इतने बड़े व्यक्ति थे, सुबह में आए तो हरे कृष्ण रेस्टोरेंट शुरू किया। मुझे याद है नंदरानी माता जी बोलती थी कि जब हम लोग रेस्टोरेंट शुरू किया तो बोले हम लोग 20 रोटी पार्सल से शुरू किया। 20 रोटी पार्सल बना के सच अ बिग बिजनेसमैन कम्स टू सुबह एंड सेल्स 20 रोटी पार्सल। ह्यूमिलिटी, इसको हम्बलनेस कहते हैं, इसको हम्बलनेस कहते हैं। जब ये भाव हम लोग नहीं रखेंगे, डोंट एक्सपेक्ट टू गो बैक होम, बैक टू गॉड। तो गुरुदेव कहते हैं अपना रिलेशनशिप विद अपन गॉड ब्रदर्स, क्योंकि वो हमारे लाइफ में गाइड। आवर गो टू पर्सन नाउ, माय गुरु महाराज इज तमाल कृष्ण महाराज इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट। हु डू आई गो टू? आई गो टू माई गॉड ब्रदर्स। माई गॉड ब्रदर्स आर माई एक्सटेंशंस ऑफ माई। जैसे पिता का विस्तार संतान होता है ना, पिता नहीं होता है तो हम लोग बड़े भाई को आगे करते कि नहीं? हम लोग अपन काम में सबसे बड़े भाई को लाते हैं। जहाँ पिता को वर्शिप करना चाहिए वहाँ बड़े भाई को वर्शिप करते हैं। अपने परिवार में, घर में शादी ब्याह कुछ भी हो तो बड़े भाई बहन को रिस्पेक्ट दे। द पॉइंट इज योर रिलेशनशिप। और गुरुदेव कहते हैं द थर्ड इज माई डिसाइपल्स। क्यों? डिसाइपल्स को हम लोग, फॉलोअर्स को हम लोग इंस्पायर करते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में। बट अगर मैं खुद नहीं इंस्पायर्ड रहूंगा, मैं खुद राइट मॉडल नहीं रहूंगा, मैं, क्योंकि एज सुन एज यू वांट टू इंस्पायर अदर्स, गुरु मतलब अब रोल मॉडल, जो तुम करोगे वही देखने वाले करेंगे। तो हमको गुरु के साथ में अपना रिलेशनशिप, गुरु भाई गुरु बहन के साथ में रिलेशनशिप, और तब फॉलोअर्स के। तो वहां से लोग सीखते हैं, वहां से लोग सीखते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि अगर ये 1 और 2 नहीं वर्क करेगा तो 3 हमारा सब डिविएशन हो जाएगा। हम लोग बोलेंगे हम लोग हरे कृष्णा का प्रचार कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि हम लोग के प्रचार की शुद्धि भी समाप्त होने लगेगा। प्रभुपाद जी पूरा भागवतम लिखे जगह जगह, प्रभुपाद जी हर एक पोपट में फिलोसफी लाते हैं। कृष्ण बुक आप पढ़िए, इट्स ऑल अबाउट कृष्णस पास्ट टाइम, बट प्रभुपाद नेवर फॉरगेट्स अबाउट टॉकिंग अबाउट द मेडिसिन, द फिलोसफी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। नहीं तो ये सब फिर संसारी जैसा हो जाएगा, दुनिया में सब लोग करते हैं उसी प्रकार हो जाएगा।
In other words, Lord Sri Krishna is the property of his pure unconditional devotees, and as such only the devotees can deliver Krishna to another devotee. Only a devotee can give Krishna to another devotee. हाँ कोई कितना भी डिग्री वाला हो, हाँ गुरु की कृपा के बिना भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि भक्ति है महात्माओं की प्रॉपर्टी है। सही बात, सही बात। भगवान की कृपा सब पर बरसती है, हाँ मगर ये संत महात्मा है जो उनकी कृपा हम तक हो। बरसता है, कृपा सभी पर बरसता है, लेकिन हम लोग वो कृपा को, एक तो हम लोग कृपा को जान नहीं पाते हैं और फिर पकड़ भी नहीं पाते। इसीलिए जो प्योर डिवोटी है वो पकड़ा है तो वो हमको दे सकता है। सत्संग, सत्संग हाँ के बिना नहीं, सही बात, सही बात। तो बोला कि कृष्ण इज नेवर ऑब्टेनेबल डायरेक्टली। कृष्ण को कभी डायरेक्टली नहीं, कभी हम लोग भक्ति में भी हम लोग भक्ति करते 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 फिर एक समय आ जाए ना, मुझे दूर हो जाना है, बस मुझे अकेले में भक्ति करना है, मुझे नहीं इसमें पढ़ना है। यहाँ प्रभु जी बोला अकेले भगवान कभी मिलेंगे नहीं, भगवान मिलेंगे ओनली विद डिवोटीज। तो गिरते उठते डिफिकल्टीज आए, ऑब्स्टिकल्स आए, उसको परीक्षा करके स्वीकार करके तभी प्रभु जी बोला डिवोटीज का एक महान क्वालिटी होता है पेशेंस एंड टॉलरेंस। तो कभी कभी हमको टॉलरेट भी करना पड़ता है, बट वी विल नॉट लीव इट। आई थिंक शिला गुरुदेव का हमारा एग्जाम्पल है। शिला गुरुदेव प्रॉपर डिसाइपल, स्पेशली आई थिंक शिला गुरुदेव वेंट थ्रू सो मेनी थिंग्स इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तक कभी कभी उनके ही गुरु भाई लोग सब लोग उससे विरोध करने लगे, लेकिन ही नेवर लेफ्ट द शेल्टर ऑफ शिला प्रभुपाद। कभी नहीं, प्रभुपाद के मिशन कभी छोड़ा नहीं, कभी प्रभुपाद का मिशन छोड़ा नहीं। तो भक्ति चौधरी महाराज भी हमेशा कहते हैं नेवर लीव इस्कॉन, गिरते उठते इसमें लगा रहो, क्योंकि भक्तों के संग में ही। और दूसरा, और हम लोग ऐसे भी सोचो जो हम लोग अधिकारी लोगन हैं, जो लीडरशिप में है। मुझे कभी कभी भक्त लोग बोलते हैं प्रभु आप लीडर हो, आप लीडर हो। मैं सोचता हूँ मैं लीडर बनना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जबरदस्ती लोग बना दिए। अब जब बना दिए हैं तो उसको निभाना पड़ेगा, है ना। ऐसे सोचना चाहिए। हम लोग ऐसे नहीं सोचे कि ना मैं नहीं इंटरेस्टेड हूँ, मैं नहीं इंटरेस्टेड हूँ तो मैं कुछ नहीं करूँ। आई स्टिल हैव माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू माई गुरु, आई स्टिल हैव माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू माई गॉड ब्रदर्स एंड गॉड सिस्टर्स। और लास्ट में जो कोई मोटिवेट हो जाता है तो ठीक है, बट सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरे गुरु का है ना। गुरु हमको बोले भी कि द बेस्ट गुरु दक्षिण इज बिकम अ वेरी गुड डिसाइपल। तो वेरी गुड डिसाइपल में ये आता है अपना संबंध गुरु से बनाए रखना, अपने संबंध गुरु भाइयों से बनाए रखना, और फिर प्रचार, ये जो मिशन है ये डिसाइपल्स वाला बात आ जाता है कि हाँ मिशन जब प्रचार करोगे तो फॉलोअर्स होंगे, तो सभी को करना है, सभी को देना है कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो फिर आगे कहते हैं Krishna is never obtainable directly. Lord Chaitanya therefore designated himself as Gopi Bhartyo Pada Kamale or Das Das Anudas, or the most obedient servant of the servants of the Lord. We have to become obedient servants. Srila Gurudev was obedient disciple. Prabhupada के disciples लोग सब obedient हैं. Obedience कैसा होता है? Obedience मतलब unexpected instruction को भी obey करते हैं. प्रभुपाद जी एक बार सूरत जा रहे थे प्रोग्राम करने के लिए। सूरत गया, प्रभुपाद का ट्रेन एक स्टेशन पे रुका, तो कोई जाना कि भक्तिवेदांत स्वामी ये जा रहे हैं प्रोग्राम करने के लिए। तो वहाँ पे 2-4 लोग एक गांव से आके स्टेशन पे वेट कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी को मिले तो बोला स्वामी जी यहाँ पे भी प्रचार होना चाहिए, यहाँ भी बहुत लोग हैं, भक्त बन सकते हैं। तो प्रभुपाद जी के साथ में मेरे ख्याल से गुरुदास प्रभु और उनकी पत्नी श्याम सुंदर प्रभु, ये सब डिवोटीज लोग जा रहे थे ट्रेन में। तो प्रभुपाद जी गुरुदास प्रभु को बोला कि अच्छा तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों इस स्टेशन पर उतर जाओ और यहाँ पे जाकर प्रीचिंग स्टैब्लिश करो। मैं होता तो प्रभुपाद जी को बोलता प्रभुपाद जी मैं प्रोग्राम के बाद में आ जाऊंगा आपका आगे फॉलो करूंगा, लेकिन प्रभुपाद आपका प्रोग्राम अटेंड कर लेते हैं तो फिर मैं आता हूँ और आपका प्रचार शुरू करो। नहीं, वो प्रभुपाद जी से आज्ञा प्राप्त किया। जैसे मुझे याद है
1993 के व्यास पूजा में श्रील गुरुदेव ने कुछ मेरे को बताया, तो मैंने बोला श्रील गुरुदेव आपका कृपा होगा तो जरूर कर पाएंगे। श्रील गुरुदेव बोला कि कृपा कोई अलग से वस्तु नहीं है मैं जो आपको प्रदान करूंगा, जो आज्ञा है वही कृपा है। आज्ञा स्वीकार कर लिया, आज्ञा करने लगे तो मतलब कृपा गुरु का मिल गया। तो ये बात है, इतना सुंदर बात है कि हम लोग ओबीडियंट सर्वेंट रहे, who maintains the gopi themselves of Vrindavan. A pure devotee therefore never approaches the Lord directly, but tries to please the servant of the Lord's servant, and thus the Lord becomes pleased, and only then can the devotee relish the taste of tulsi leaves stuck to the lotus feet. In the Brahma Samhita it is said that Lord is never to be found by becoming a great scholar of the Vedic literatures, but he is very easily approachable through his pure devotees. In Vrindavan, all the pure devotees pray for the mercy of Srimati Radharani, the pleasure potency of Lord Krishna. Srimati Radharani is a tender-hearted feminine counterpart of the Supreme Whole, resembling the perfectional stage of the worldly feminine nature. Therefore, the mercy of Radharani is available very readily to the sincere devotees, and once she recommends such a devotee to Lord Krishna, the Lord at once accepts the devotee's admittance into his association. The conclusion is therefore one should be more serious about seeking the mercy of the devotees than the Lord directly, and by once doing so, by the goodwill of the devotee, the natural attraction for the service of the Lord will be revived. एक बहुत अच्छा प्रभुपाद जी अच्छा कंक्लूजन यहाँ पे दिया। जनरली हम लोग सबको जानते हैं राधा रानी इज द बेस्ट डिवोटी ऑफ कृष्ण। तो प्रभुपाद जी लिखे कि राधा रानी जब हम लोग के कृष्ण का रिकमेंड कर देगी तो हम लोग के मिल जाएंगे, राइट। तो दुनिया भर में हम लोग देखते हैं, इवन मैं देखता हूँ कि इस्कॉन सोसाइटी में भी ये इन्फिल्ट्रेट हो गया, ये घुस गया। कैसे घुस गया कि अब हरे कृष्ण संस्था में भी हम लोग मिलते हैं एक दूसरे से, राधे राधे प्रभु जी, राधे राधे। रॉन्ग नहीं है, रॉन्ग नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि राधा रानी का इंपॉर्टेंस किसी प्रकार से कमती है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु हम लोग के मूड क्या दिया है, गोपी भरत्योर पद कमलोर दास दास अनुदास। श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी हरदम प्रे करते थे कि मैं चाहता हूं मेरा लड़का राधा रानी का भक्त बने। जब प्रभुपाद जी प्रीचिंग शुरू किया, इट इज वी फॉलो इन द लाइन ऑफ लॉर्ड चैतन्य। प्रभुपाद जी कंक्लूजन में लाके बोले कि ये राधा रानी का कृपा प्राप्त करना मतलब कि डिवोटीज की कृपा प्राप्त करना। नहीं तो अदरवाइज हम लोग भक्त लोग वृंदावन जाते हैं, वृंदावन में तो ठीक है, सब डायरेक्टली राधा रानी का धाम है, डायरेक्टली राधा रानी की अनुमति से सब कुछ होता है, तो वहां लोग जाते हैं राधे 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 राधे। तो कभी कभी हमारे डिवोटीज भी पिक करके आ जाते हैं। नंबर वन, हम लोग वृंदावन में नहीं है, मतलब हम लोग वी आर मोर कंडीशन द पीपल देयर। तो कंडीशन सोल्स को लिबरेट करने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रोसेस दिया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सभी को होमवर्क देना चाहता हूं, आप लोग प्रभुपाद जी के सभी लेक्चर सुनो और मुझे रेफरेंस लाके दो कि प्रभुपाद जी कहीं पर डिवोटीज को ग्रीट कर रहे हैं राधे राधे, या अपने डिसाइपल्स को कह रहे हैं राधे राधे। द वे दैट राधे राधे वर्क्स, मैं एक छोटा सा के लिए एग्जाम्पल दे दूं। एंटीबायोटिक डॉक्टर जानती होगी, गुरु सेवा जानती है, एंटीबायोटिक जो है वो कैप्सूल्स में आता है। 500 mg स्ट्रेंथ आता है, 250 स्ट्रेंथ आता है। लेकिन क्या एक छोटा बच्चा एक गोली को निगल सकता है? दवाई मिलेगा, एमोक्सिलिन मिलेगा, लेकिन वो कैप्सूल नहीं रहेगा, वो सस्पेंशन रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, और उसको पिलाने के लिए थोड़ा उसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर या ऑरेंज फ्लेवर होगा जिसमें कि बच्चा निगल ले। हम लोग को राधा रानी ही कृपा करेगी, हम लोग को राधा रानी के माध्यम से ही जाना है, लेकिन वो सस्पेंशन फॉर्म में चैतन्य महाप्रभु दिया, हम लोग निगल नहीं पाएंगे, हम लोग राधा रानी के भाव में करेंगे। एक डिवोटी का एग्जाम्पल, एक भक्त था, वो जगन्नाथ जी को इतना प्रेम करता था, तो वो बोला क्या हुआ, वो जगन्नाथ जी को लेकर सो जाती थी कि जगन्नाथ जी मेरे स्वामी, जगन्नाथ जी मेरे स्वामी। तो 5-6 साल ऐसे किया 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 किया। फिर उनके घर में एक नौकर था, वो कब जगन्नाथ जी
वो जिसके साथ में खाट में सो रहे थे, जगन्नाथ जी ऑल्टर पर चला गया और नौकर खाट में आ गया। मतलब हम लोग आर्टिफिशियली ये सब चीज करेंगे, विल एक्चुअली एंड अप वायलेटिंग रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स एंड विल फॉल डाउन। तभी ये प्रोसेस दिया है। हरे कृष्ण मंत्र राधा रानी का मंत्र है, तो दैट्स द वे वी टेक इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मैं देख रहा हूं, दिस इज अ डिविएशन दैट्स हैपनिंग एंड दिस इज एक्चुअली डाइल्यूटिंग आवर सोसाइटी और डाइल्यूटिंग आवर प्रोसेस, एंड इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू एक्चुअली कीप अलाइन टू श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद, हमने अपने गुरुदेव को नहीं देखा कभी डिसाइपल्स को ग्रीट कर रहे हैं, गुरु भाई को ग्रीट कर रहे हैं राधे राधे। वी ऑलवेज डू वंचा कल्पा एंड वी ग्रीट वन अनदर हरे कृष्णा, बिकॉज वी वांट टू चैंट द नेम दैट इज मेंट फॉर डिलीवरिंग द impurities, deliver us from the impurities of Kali Yuga. We are constantly in the flood of impurities of Kali Yuga. तो ये अलाइनमेंट इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू से जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद केवल गाने के बात नहीं है कि हम लोग कहीं भी बोलेंगे जय प्रभुपाद, वो हो गया। लोई बाजार में आप जाइए कार्तिक में, सब दुकान में प्रभुपाद जी का छापा होता है। इस्कॉन वाले जाते हैं, सोचिए प्रभुपाद डिवोटी सब वहीं शॉपिंग, उनका गोल है शॉपिंग कराना। लोई बाजार में गोल नहीं है कि हम लोग भगवान देना चाहते हैं या प्रभुपाद जी के परंपरा में लोगों को जोड़ना चाहते हैं। वो प्रभुपाद जी के छापा लगाने से सब इस्कॉन डिवोटी वहीं चले जाते हैं, सोचिए प्रभुपाद का दुकान है। लेकिन वह गलत है। तो मेंटेनिंग द प्योरिटी ऑफ द, गुरुदेव कहते हैं, मैं गुरुदेव का लेक्चर सुनता, गुरुदेव बोले मेंटेन द प्योरिटी ऑफ प्रभुपाद टीचिंग्स। इस्कॉन हम लोग के जो रजिस्ट्रेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रभुपाद जी बना के दिया है, हमारे संस्था का कॉन्स्टिट्यूशन है टू maintain and propagate the teachings of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, is enunciated by Lord Chaitanya. So Lord Chaitanya के teachings और Prabhupada के teachings is the basis for ISKCON. Hare Krishna, thank you very much. जय श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय।
पुरुषं भजामि